میں اپنی بائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں۔ میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کی طرف سے یعنی کی جگہ۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آن بہاف آف۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس آن بہاف آف پلس ادر ورڈز اگر ہے تو سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت ضروری ہے۔ آن بہاف آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کی طرف سے یا کی جگہ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں۔ I apologize on behalf of my brother. I apologize on behalf of my brother. آئیے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ on behalf of مین کی طرف سے یا کی جگہ۔ my brother میرے بھائی یعنی میں اپنی بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں۔ I apologize on behalf of my brother. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں۔ I work on behalf of my friend. I work on behalf of my friend یعنی میں اپنے دوست کی جگہ کام کرتا ہوں۔ on behalf of مین کی طرف سے یا کی جگہ۔ میں اپنے دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنے دوست کی جگہ کام کرتا ہوں۔ I work on behalf of my friend. I work on behalf of my friend. I work یہ ہمارا سینٹینس ہے on behalf of مین کی طرف سے یا کی جگہ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں۔ میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں۔ I came on behalf of my family. I came on behalf of my family. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ اس نے تمہاری طرف سے میری مدد کی یعنی اس نے تمہاری جگہ میری مدد کی۔ He helped me on behalf of you. He helped me on behalf of you. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا۔ میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا یعنی میں اس سے تمہاری جگہ بات کروں گا۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. میں اس کمپنی کا ہونے والا مینیجر ہوں۔ وہ اس جائیداد کا ہونے والا مالک ہے۔ تم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہونے والا یا ہونے والی یا ہونے والے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں would be. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد would be کے بعد ناؤن۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں اس کمپنی کا ہونے والا مینیجر ہوں۔ I am the would be manager of this company. I am the would be manager of this company. وہ اس جائیداد کا ہونے والا مالک ہے۔ He is the would be owner of this property. He is the would be owner of this property. تم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہو۔ You are the would be captain of our team. You are the would be captain of our team. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے۔ وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے۔ He is your the would be father-in-law. He is your the would be father-in-law. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں۔ وہ اس کار کا ہونے والا مالک ہے۔ وہ
اس کار کا ہونے والا مالک ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، پانی گرم ہو گیا ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز. پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی ڈے یا پلورل ناؤن کے ساتھ ہیو. سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ ہیز یوز ہوتا ہے. اس کے بعد گاٹ اور گاٹ کے بعد ایڈجیکٹو. یہ اسٹرکچر تب یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے یعنی چائے پہلے گرم تھی، اب ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہو گئی ہے. ٹی ہیز گاٹ کول. ٹی ہیز گاٹ کول. ٹی یہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لیے ہیز یوز ہوا ہے. کول یہ ایڈجیکٹو ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اندھیرا ہو گیا ہے. اٹ ہیز گاٹ ڈارک. اٹ ہیز گاٹ ڈارک. ڈارک یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. پانی گرم ہو گیا ہے یعنی پانی پہلے ٹھنڈا تھی اب گرم ہو گیا ہے. واٹر ہیز گاٹ ہاٹ. واٹر ہیز گاٹ ہاٹ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ موٹی ہو گئی ہے. وہ موٹی ہو گئی ہے. شی ہیز گاٹ فیٹ. شی ہیز گاٹ فیٹ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم بدتمیز ہو گئے ہو. تم بدتمیز ہو گئے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. اگر ہو سکے تو اس کی مدد کرنا. اگر ہو سکے تو مجھ سے ملنا. اگر ہو سکے تو اس کے لیے انتظار کرنا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if possible. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. if possible پلس کاما اگر لکھنا ہے تو پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. if possible یہ وہی کا وہی رہے گا which mean اگر ہو سکے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اگر ہو سکے تو اس کی مدد کرنا. if possible help her. if possible help her. اگر ہو سکے تو مجھ سے ملنا. if possible meet me. if possible meet me. اگر ہو سکے تو اس کے لیے انتظار کرنا. if possible wait for her. if possible wait for her. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اگر ہو سکے تو سبزی لے آنا. اگر ہو سکے تو سبزی لے آنا. if possible get vegetable. if possible get vegetable. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ہو سکے تو مجھے بھول جانا. مجھے سارا دن کام کرنا پڑ رہا ہے. اسے روز وہاں جانا پڑ رہا ہے. تمہیں دودھ پینا پڑ رہا ہے. مجھے کمپیوٹر سیکھنا پڑ رہا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پڑھ رہا ہے یعنی ہر سینٹینس میں پڑھ رہا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیونگ ٹو. ہیونگ ٹو مین پڑھ رہا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ہیونگ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. مجھے سارا دن کام کرنا پڑ رہا ہے. I am having to work whole day.
I am having to work whole day. उसे रोज वहां जाना पड़ रहा है. He is having to go there every day. He is having to go there every day. थोड़ी सी मेहनत करके आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश जुबान में बना सकते हैं. तुम्हें दूध पीना पड़ रहा है. You are having to drink milk. You are having to drink milk. मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है. I am having to learn computer. I am having to learn computer. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना. उसे यहाँ आना पड़ रहा है. उसे यहाँ आना पड़ रहा है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मांगना. कपड़े धोना उसकी मजबूरी है. खाना पकाना मेरी मजबूरी है. उससे बात करना मेरी मजबूरी है. तुम्हारे साथ जाना मेरी मजबूरी है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मजबूरी, यानी हर सेंटेंस में मजबूरी रिपीट हो रहा है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंपल्शन. कंपल्शन मीन मजबूरी. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. एट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस कंपल्शन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कपड़े धोना उसकी मजबूरी है. It is her compulsion to wash clothes. It is her compulsion to wash clothes. खाना पकाना मेरी मजबूरी है. It is my compulsion to cook food. It is my compulsion to cook food. थोड़ी सी मेहनत करके आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं. उससे बात करना मेरी मजबूरी है. It is my compulsion to talk to him. It is my compulsion to talk to him. तुम्हारे साथ जाना मेरी मजबूरी है. It is my compulsion to go with you. It is my compulsion to go with you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना. स्कूल जाना तुम्हारी मजबूरी है. स्कूल जाना तुम्हारी मजबूरी है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मांगना. जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो. जल्दी किया है आराम से बोलो. जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. वॉज द रश प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा. वॉज द रश ये वही का वही रहेगा विच मीन जल्दी किया है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. जल्दी किया है पहले उसे घर पहुंचने दो. वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट. वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जल्दी किया है आराम से बोलो. वॉज द रश स्पीक स्लोली. वॉज द रश स्पीक स्लोली. वॉज द रश मीन जल्दी किया है. स्पीक स्लोली मीन आराम से बोलो. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जल्दी किया है थोड़ी देर और रुक जाओ. वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम. वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में
आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो, जल्दी किया है थोड़ा सब्र करो। वस द रश हैव सम पेशेंस, वस द रश हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा, जल्दी किया है मैं उसे कल करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था, मेरा मतलब उसे रुलाना नहीं था, मेरा मतलब आपको बुलाना नहीं था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरा मतलब नहीं था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई डिडंट मीन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई डिडंट मीन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था, आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। मेरा मतलब उसे रुलाना नहीं था, आई डिडंट मीन टू मेक हर क्राई, आई डिडंट मीन टू मेक हर क्राई। मेरा मतलब आपको बुलाना नहीं था, आई डिडंट मीन टू कॉल यू। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। क्या कमी है तुम में, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू। क्या कमी है उसमें, व्हाट इज़ लैकिंग इन हर। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू लिव हियर, यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्पीक, यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है, आई हैव नो राइट टू गो देयर, आई हैव नो राइट टू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू कम हियर, यू हैव नो राइट टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है, तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। कौन कौन भाग रहा है, कौन कौन लड़ रहा था, इस काम को कौन कौन कर सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन कौन, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु ओ प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कौन कौन भाग रहा है, हु ऑल आर रनिंग, हु ऑल आर रनिंग। कौन कौन लड़ रहा था, हु ऑल वर फाइटिंग, हु ऑल वर फाइटिंग। इस काम को कौन कौन कर सकता है, हु ऑल कैन डू दिस वर्क,
who all can do this work. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। one more example for better understand। कौन कौन यहाँ आ रहा है, कौन कौन यहाँ आ रहा है, who all are coming here, who all are coming here। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कौन कौन वहाँ जा रहा है। तुम्हें लिखना किसने सिखाया, उसे खेलना किसने सिखाया, तुम्हें बोलना किसने सिखाया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने सिखाया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु टॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु टॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें लिखना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू राइट, हु टॉट यू टू राइट। यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खेलना किसने सिखाया, हु टॉट हिम टू प्ले, हु टॉट हिम टू प्ले। तुम्हें बोलना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू स्पीक, हु टॉट यू टू स्पीक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पढ़ना किसने सिखाया, उसे पढ़ना किसने सिखाया, हु टॉट हिम टू रीड, हु टॉट हिम टू रीड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लड़ना किसने सिखाया, तुम्हें लड़ना किसने सिखाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। एट प्लस एज के बाद नो, नो के बाद वर्ब प्लस ING जिसको जरंड भी कहा जाता है, जरंड के बाद मैटर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसमें सोचने की क्या बात है यानी इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो थिंकिंग मैटर, इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। एट के बाद एज के बाद नो, नो के बाद थिंक प्लस वर्ब यानी थिंक प्लस ING जिसको जरंड भी कहते हैं, थिंकिंग, और थिंकिंग के बाद मैटर। सुन, इसमें सोचने की क्या बात है, इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। सो यू कैन सिंपली से दैट इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। सो वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें रोने की क्या बात है यानी इसमें रोने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो क्राइंग मैटर, इट इज़ नो क्राइंग मैटर। एट के बाद एज के बाद नो, नो के बाद वर्ब प्लस ING यानी क्राइंग जिसको जरंड भी कहा जाता है, इसके बाद मैटर। इसमें रोने की क्या बात है, इट इज़ नो क्राइंग मैटर। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है यानी इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो गेटिंग एंग्री मैटर, इट इज़ नो गेटिंग एंग्री मैटर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसमें पूछने की क्या बात है यानी इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो आस्किंग मैटर, इट इज़ नो आस्किंग मैटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें कहने की क्या बात है, इसमें कहने की क्या बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। उसे थोड़ी देर और सोचने दो, वो थोड़ी देर और चलाएगी, मैं थोड़ी और खेल सकता हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर और। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में a little longer,
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अ लेटर लॉन्गर। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अ लेटर लॉन्गर ये वही कि वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर और। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे थोड़ी देर और सोचने दो। लेट हिम थिंक अ लिटिल लॉन्गर। लेट हिम थिंक अ लिटिल लॉन्गर। वो थोड़ी देर और चलाएगी। शी विल स्क्रीम अ लिटिल लॉन्गर। शी विल स्क्रीम अ लिटिल। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम कन्फ्यूज्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड प्लस WH वर्ड प्लस आई प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स अगर हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में नहीं आ रहा कि क्या खरीदूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।